we will discuss about chapter number 1 of class 10, which is real. Before starting reading the concept of this chapter, we go through with the number system, which you have already studied in your previous classes, but although we have taken a quick recap of this, so हम one by one देखते हैं कि what is this number and how many types of number system we have. So first is we have natural number. So what is natural number? Natural number ऐसे number जो कि naturally हमें मिले हैं. Like we can say that one हमारे पास एक ऐसा हमारे पास एक एप्पल है, means one apple. That is naturally created. Natural है वो हमारे पास. And by adding 1 and 1 and 1, we have all the numbers. Like we can say that we have 1 naturally, and by adding 1 in this one, we have 2. Like that, by adding 1 in this, we have 3. By adding 1 in this, we have 4. ऐसे ही करके हमारे पास आ जाएंगे नेचुरल नंबर. So we can say that we have natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So this is our natural number. After that we have whole number. So in this situation we don't have 0 because without 0 the counting is incomplete. We can't write like this. We can't write 10 without 0. So we can't add 1 and make 11 और इसके बाद वाली टर्म्स भी हम नहीं बना सकते without 0. So after the discovery of 0, so it's a question for you. आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पे that 0 की डिस्कवरी किसने की. So after the discovery of 0 we have whole number. Then what is whole number? So whole number is which is starts from 0, 0, 1, 2, 3 and so on. Okay? Natural number is starts from 1 and whole number is starts from 0. After that we have even number. I think most of you know that what is even number. Even number which is divisible by 2. We can say that like 2, 4, 6, 8, 10 and so on. And what is odd number? Odd number which is not divisible by 2. Like 1 is not divisible by 2, 3 and 5, 7 and so on. After that we have prime number. Prime number क्या होते हैं हमारे पास? Prime number which is divisible by its own, जो सिर्फ अपने टेबल पे ही करते हैं. So we can say that what is a prime number? 3 is a prime number. Also 2 is a prime number. 5 is a prime number. And 7 is a prime number. And so on. So what is composite number? जो कि अपने टेबल पे तो करते ही करते हैं और दूसरों के टेबल पे भी करते हैं. So we can say that 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 and so on. After that we have integer. Integer क्या होता है? अब इसको ध्यान से समझ लो. Basically integer in which both negative and positive number. हमें पता है नंबर लाइन, ये पूरी नंबर लाइन जो है वो इंटीजर होता है. यहाँ पे हमारे पास 0 होता है. देन इसके पहले वाली सारी टर्म्स क्या होती है हमारे पास नेगेटिव एंड इसके बाद वाली सारी टर्म्स क्या होती है पॉजिटिव. इंटीजर कंटेन ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स. हियर वी हैव 3 मोर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. पहला क्या है हमारे पास रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होते हैं? मैनी ऑफ यू नो दैट रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं. लाइक एनीथिंग यू कैन टेक 25/4.
बट आप पहचानोगे कैसे कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं? बिकॉज आपको पता है इरेशनल नंबर भी P/Q की फॉर्म में होता है। सो इन दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे, इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। दो मेथड हैं जिनसे आप पहचान सकते हो। पहला मेथड, जो भी रैशनल नंबर होता है वो किसी लिमिटेड डेसिमल के बाद किसी लिमिटेड टर्म तक खत्म हो जाता है। जैसे इस दोनों को अगर हम 25/4 जैसे मैंने अभी बोला, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6.25। ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है, एक पर्टिकुलर टर्म के बाद, डेसिमल के बाद जाके ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमारा आंसर। सो ये पहली पहचान है रैशनल नंबर की। दूसरी पहचान क्या है, अगर ऐसे नहीं ख़त्म होगा तो लाइक ऐसे आंसर आ जाएगा रिपीटेड 6 3 3 3 3 3 3 लाइक दैट, टर्म्स रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। सो ये दोनों जो है वो एक पहचान है रैशनल नंबर की। एंड नाउ व्हाट इज इरेशनल नंबर, जिसमें मतलब डेसिमल के बाद कोई स्टेटमेंट, कोई सेम ना आए पर्टिकुलर टर्म, और आती जाए, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यू कैन से दैट, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। लाइक ऐसा कुछ आंसर आए 2.3456789 एंड 1 2 3 7 9 ऐसे सो ऑन, खत्म ही ना हो। सो ऐसा जो आंसर होता है वो इरेशनल होता है। एग्जांपल जैसे पाई इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। कुछ रूट्स जो कि जिनका कोई पर्टिकुलर ही कोई नंबर नहीं आता, लाइक √3 √5 एंड एक्सेट्रा, दैट इज अ इरेशनल नंबर। ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज रियल नंबर, जो कि हमारा बेसिक चैप्टर का नेम ही है। तो इसी को समझने के लिए हमने ये सब कुछ दोबारा से रिकैप किया। सो व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर में जो है वो रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही आ जाते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। और एक और चीज, दैट रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड इंटीजर ऑल आर इन रैशनल नंबर. It is the combination of all these 7 nervous system. Okay, like कैसे देख सकते हैं हम, बिकॉज हमने देखा 25/4, सो 25 जो है वो एक नेचुरल नंबर भी है, एक होल नंबर भी है एंड इवन नंबर 4 हो गया। 25 भी हमारे पास एक ऑड नंबर है। इसी तरह ये जो रैशनल नंबर के जो हैं वो इन सभी के कॉम्बिनेशन से बना होता है। एंड रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मीन्स इसमें जो है सारा नंबर सिस्टम के जो नंबर्स हैं वो इस रियल नंबर में आते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारा नंबर सिस्टम समझ आ गया होगा। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि इस चैप्टर में हमें चाहिए। तो इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो अब हम समझते हैं दैट व्हाट इज एल्गोरिथम एंड व्हाट इज डिवीजन एंड व्हाट इज एग्जैक्टली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाने का एक प्रोसीजर जब हमें मिल जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को बनाने से पहले तो हम उस चीज़ को कैसे बनाएं, किसके अकॉर्डिंग बनाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं एंड उसके क्या स्टेप्स हैं उसको बनाने के, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिवीज़न एल्गोरिथम। सो डिवीज़न एल्गोरिथम से हमें नाम से ही पता लग रहा है, डिवीज़न मतलब डिवीज़न करने का एक एल्गोरिथम, एक प्रोसीजर जो हमें बचपन से ही पता है। लाइक वी कैन से दैट we have to divide 25 by 2. Okay, we know how to divide this. हम देखते हैं कि कौन सी टर्म इससे डिवाइड हो रही है, देन 2 पे हो रही है, कौन से ना टेबल पे जाता है 1 पे, देन माइनस करते हैं, सो 0 5, देन आफ्टर दैट 4 2
देन आफ्टर माइनस एंड सो ये हमने बचपन में सीखा है कि ऐसे ही डिवाइड करते हैं एंड दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम। तो पता लगा आपको डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। एंड व्हाट इज यूक्लिड? यूक्लिड जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिससे हमें ये थ्योरी दी थी। बेसिकली इसमें हम निकालेंगे HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो यूक्लिड इज नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिसने हमें ये दिया था। सो इसलिए उसके नाम से ही इस कॉन्सेप्ट का नाम भी पड़ गया। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जिस टर्म से हम डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? डिवाइजर। एंड जिसको हम डिवाइड करते हैं वो हमेशा बड़ा होता है, हमें पता है। सो ये क्या है? डिविडेंड। और जो हमारे पास आंसर आता है ये क्या होता है? हमारा क्वेश्चन। एंड नीचे वाला क्या होता है? रिमेंडर। ऐसा ही होता है सब। सो हमें एक चीज पता है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा हमारे डिवाइजर से छोटा होता है। हमारा रिमाइंडर जो है वो हमेशा हमारे डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है। एंड ये हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है। हमने इससे ये जो है वो कंडीशन निकाली दैट हमारा जो रिमाइंडर है वो हमेशा जो है वो डिवाइजर से छोटा होगा, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा एंड 0 होगा या 0 से बड़ा। ओके, ऐसा ही है हमारे पास इस केस में भी 2 बड़ा है एंड 1 छोटा है। सो ये हम याद रखेंगे और इसको हम अपने आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे दैट यूक्लिड डिवीजन से हम HCF कैसे निकालें। बेसिकली हमारा चैप्टर ही इसी बेसिस पे है। सो इसको निकालना कैसे है? निकालने से पहले हम देखेंगे कि HCF होता क्या है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, The full form of HCF is highest common factor। मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 8 and 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 8 कम्प्लीटली कौन कौन सी चीज़ों, कौन कौन से फैक्टर से या नंबर से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 8 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा एंड 8 खुद से हो जाएगा कम्प्लीटली डिवाइड। ओके, एंड 12 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा एंड 12 खुद भी हो जाएगा। सो ये आगे हमारे पास 8 के फैक्टर और यहाँ पे आगे हमारे पास 12 के फैक्टर। ये सभी टर्म से 8 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा एंड इन सभी टर्म से 12 विल बी कम्प्लीटली डिवाइड। सो अब हम उन्होंने क्या बोला है? कॉमन फैक्टर। सो इनमें से कॉमन क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। 1 इज कॉमन फ्रॉम बोथ, 2 इज कॉमन, 4 इज कॉमन। बस यही चीज़ें कॉमन थी। अब क्या बोला उसने? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 1 2 और 4 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें साफ साफ दिख रहा है, दैट इज 4। सो आई होप आपको समझ आ गया दैट व्हाट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट यूक्लिड ने हमें एक लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया है जिससे हम ये निकालेंगे एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दैट मेथड। सो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये 2 टर्म है 8 एंड 12। सो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो बड़ा जो भी होगा वो क्या होगा? वो हमारा हम डिविडेंड रखेंगे एंड जो छोटा होगा उसको हम क्या रखेंगे? डिवाइजर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 8 आ गया, ये 1 पे जाता है, माइनस कर दिया, हमारे पास 4 आ गया। 4 आ गया रिमाइंडर। जब तक हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। सो 4 आया हमारे पास, हम इसको दोबारा से डिवाइड करते हैं।
बाय इससे इससे, ठीक है। हम उसको डिवाइजर से दोबारा डिवाइड करेंगे बिकॉज एक बार इससे डिवाइड करने पे ये कंप्लीटली कट नहीं हुआ, तो हम दोबारा उसको इससे ही डिवाइड करेंगे, जिससे हम पहले डिवाइजर को हम रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। देन ये हमारे पास पूरा पूरा कट गया एंड दिस इज, सो HCF क्या आ गया हमारे पास, डिवाइजर इज अ HCF। 8 और 12 का HCF क्या है, 4, सेम आ रहा है, सो दिस इज अ HCF। ओके, ऐसे ही हम सभी सम्स को सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 और 25 की ले लेते हैं। सो 10 और 25 की हमने एग्जांपल ले ली, ठीक है। देन हम देखेंगे इन दोनों में से बड़ा क्या है, 25। जो बड़ा होगा वो उसको हम डिविडेंड बना देंगे एंड जो छोटा होगा उसको हम डिवाइजर बना देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट बी कहाँ पे जाएगा, 20 पे, विच इज 2 एंड रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 5। ये दोबारा कंप्लीटली नहीं गया 10 पे, सो हम इसको 10 से ही दोबारा से डिवाइड करेंगे। तो 10 10 एंड ये जो है वो कंप्लीटली खत्म हो गया। सो इसका हमारा HCF क्या हुआ, जिससे ये लास्ट टाइम डिवाइजर होगा, डिवाइड होगा। सो ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लास्ट में जाके जो डिवाइजर आया वो क्या होगा, वो ही हमारा HCF। सो अभी हम एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है वो हमें, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। एंड फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट मैं आपको कराऊंगी एंड थर्ड पार्ट आप खुद प्रैक्टिस करोगे। अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं उसको कराऊंगी। So according to Euclid's algorithm and long division method, हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन को करना। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। 225 है बड़ा, सो 225 अंदर रहेगा एंड 135 जो है वो बाहर आ जाएगा। ओके, 135 भी 1 पे जा रहा है। डिवाइड करना तो सबको आता ही है, तो इसको माइनस कर दो 0। देन 22 माइनस 13 9। अब हमारे पास ये नहीं गया कंप्लीटली, सो हम 90 को किससे डिवाइड करेंगे, जो पहले हमारे पास डिवाइजर था दैट इज 135, ठीक है। हम देख लेते हैं 92 का क्या आता है। हमें पता है 92 का 180 आएगा, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, वो तो जाएगा ही, सो हम इसको 1 पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5 एंड 40। ओके, देन फिर हम दोबारा से इसको 90 से करते हैं, फिर भी क्या 90 से किया हमने, तो 45 का अगर हम करें तो हमारे पास कंप्लीटली जो है वो जा रहा है। ओके, ये हमारे पास क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। सो 90 यहाँ पे खत्म हो गया। कौन से नंबर पे आया था, 2 पे। सो हमारा HCF क्या आया इस सम का, जो हमारा लास्ट क्या होगा, डिवाइड। सो HCF हमारे पास आ गया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही इजी है, बस इसको ध्यान से करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमें दिया गया है, अब हम इसको करते हैं। बड़ी टर्म क्या होगी, डिविडेंड, एंड छोटी टर्म क्या होगी, डिवाइजर। सो हम सबसे पहले कुछ भी अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो मैं आपको इजी वे बता देती हूँ। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर कम नंबर आ रहा है, छोटा आ रहा है इससे, तो मतलब उसके बाद वाले टर्म्स होंगे। अगर बड़ा आ रहा है ये, अगर ये बड़ा है तो उससे पहले वाले टर्म। तो हम देखते हैं 5 से करके, जब हम इसको 5 से करते हैं तो 0 3 45 प्लस 3 48 मतलब 9। ये तो बहुत ही ज़्यादा है। सो 196 को 2
1 कैरी, 19 + 1 20। सो 382 के हिसाब से हम इसको 1 पे ही करेंगे। 196 माइनस कर दिया 6, ये हमारा 7 हो गया, ये 12, हम इसको 17 माइनस 9 क्या होगा हमारे पास 8 and 1, तो 186 आ गया, विच इज रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर छोटा है लेकिन ये अभी डिवाइड नहीं होगा, हमें कैरी लेना पड़ेगा, हमने 2 को कैरी दिया। आफ्टर दैट अब कौन से नंबर पे वो जाएगा, हमने 5 पे देखा था, कुछ 980 अप्रॉक्स आ रहा था। सो इफ वी मल्टीप्लाई 196 बाय 8, व्हाट वी विल गेट 8 4, दैट इज, सो ये 9 पे जा रहा है, हम इसको 9 पे कट करते हैं। ओके, 9 पे कट करने पे क्या आएगा 1764। ओके, ये 9 पे चला गया हमारे पास, एंड माइनस कर देंगे इसको 12, 8, दैट इज 5, 9 एंड 9 8। हमने देखा था 5 से मल्टीप्लाई किया था, क्या आ रहा था 196, 5 का दोबारा से कर देते 0, 3 कैरी 48 4, तो 980 9, ये हमारे पास क्या है वो पूरा इसी पे चला गया। सो ये 5, तो इसका HCF क्या आया हमारे पास, HCF ऑफ दिस इज 196। ये इससे यहीं पे पूरी जो है वो कटिंग होगी। इफ यू मल्टीप्लाई 196 बाय 195 यू विल गेट, यू कैन चेक इट ऑल्सो। ओके, एंड थर्ड पार्ट आप खुद कर लोगे, एंड इफ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। सो गाइज, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सो इसको ध्यान से समझो ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। Let's discuss about question number 2. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. So positive odd integer तो पहले बताओ क्या होता है। Positive odd integer, हमें पता है integer में क्या है, all positive and negative, पूरे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाएंगे। इन्होंने क्या बोला पॉजिटिव, हमें पता लग गया, अब इसमें सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, ऑल पॉजिटिव। और क्या बोला, इवन और दोनों आते हैं इंटीजर में, इवन भी होते हैं ऑड होते हैं, 1 2 3 4 ऑल नंबर्स आते हैं कंबाइनिंग इंटीजर। तो ऑड बोले लाइक क्या 1 3 5 7, ठीक है। सो ऐसे इंटीजर जो कि पॉजिटिव हों और ऑड हों, बताइए कि वो किसकी फॉर्म में होंगे, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, जिसमें q जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हम कैसे डिवाइड करते हैं 7 2 एंड को डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आएगा, ऐसे हुआ हमारे पास डिवाइड। अब मान लो कि जिससे डिवाइड करना है वही टर्म हमारे पास नहीं है, बाकी सारी टर्म्स हैं हमारे पास, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि ये 2 क्या है, ये 2 जो है वो हमारा डिवाइजर है। सो डिवाइजर को हमने क्या माना d, ठीक है। ये 2 जो है वो हमारा, पहले तो जो नंबर हमने निकालना है वो इक्वल टू, तो हमें n निकालना है। n कैसे निकाल लेंगे हम, सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमें रिमाइंडर दिया गया, सॉरी क्वेश्चन दिया गया है। सो क्वेश्चन क्या होता है, जो टर्म को हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं वही होता है।
सो 2 इंटू 3 क्या होगा 6, ठीक है, हमारे पास 6 आ गया। 2 इंटू 3 6, यहाँ पे 6 आया तभी हम यहाँ पे 3 लिखते हैं बिकॉज 2 की टेबल में 6 कौन से नंबर पे जाता है 3 नंबर पे, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब हम देखेंगे रिमाइंडर 1 है, मतलब कोई ऐसी चीज़ से 6 माइनस हो रहा है जिससे हमारे पास 1 आ रहा है। सो ये तो नॉर्मली है कि क्या होगा 7। ओके, इट्स सो सिंपल। सो एन हमारे पास कैसे आया, जब हमने डिवाइजर को इस क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस किया रिमाइंडर, ऐसे ही हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1। ओके, 6 प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया 7। समझ आया बच्चों आपको? सो ऐसे ही होगा हमारे पास। अब हम इसको नेम दे देते हैं, सिंपल सी बात है। हम इसको ए मान लेते हैं एंड इसको बी मान लेते हैं। तो अभी जो नंबर हमने निकालना है, सॉरी, इसको बी मान लेते हैं एंड इसको ए मान लेते हैं। ओके, जो नंबर हमने निकालना है वो ए एंड डिवाइजर क्या है हमारे पास बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है। ओके, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ गई। अब अकॉर्डिंग टू वो हमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा जिसको हम 6q प्लस 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 6q प्लस 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 6q प्लस 5 की फॉर्म में। तो ऐसे हम कैसे निकालेंगे इसको? तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एक ऑड इंटीजर है जिसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 6q प्लस 1, ठीक है, ऐसे ही बोल रहा है ना, ऐसे ही किस। एंड यहाँ पे क्या है 6 क्या है हमारे पास 6 इंटू क्यू, मतलब 6 जो है वो हमारा जो है वो, सॉरी, ये डिवाइजर है, ठीक है, मीन बी ये हमारा डिवाइजर है जो कि डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या देखा था, डिवाइजर हमेशा जो है वो रिमाइंडर से बड़ा ही होगा। 6 मतलब जो है वो रिमाइंडर से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वो 6 से छोटा ही होगा रिमाइंडर, तो उसके क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं? उसका रिमाइंडर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सारे रिमाइंडर हो सकते हैं। हमेशा क्या हमने देखा था कि जो डिवाइजर है उसका रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही आएगा। तो अगर हमारे पास डिवाइजर ही 6 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर आने की? या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5। सो मीन्स ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। इतने तरीकों से लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू हमारी कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन हमने देखी थी, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा एंड 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। ये कंडीशन याद है सभी को? इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये सारी कंडीशंस बनाएंगे। सो हम एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था 7 था ये हमारे पास। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2q प्लस, या तो ये 0 होगा या तो ये 1 होगा। तो इसमें q की वैल्यू हमने 3 डाली, 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। उसी तरह हमारे पास ये 6q है एंड 6 से छोटी जितनी भी टर्म आई वो हमने लिख ली। एंड लेट्स स्टार्ट, देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इसमें देखते हैं हम पहला हमारे पास क्या है 6q, तो इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं ऐसे करके 2, देन अंदर क्या रहेगा 3। सो इसका मतलब क्या है कि जो भी टर्म जो आएगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी एंड कम्प्लीटली कट जाएगी। अगर ये 2 से डिवाइड हो रही है तो क्या ये ऑड इंटीजर होगा? नहीं।
हमने क्या देखा था, इवन नंबर्स कौन से होते हैं विच इज डिविजिबल बाय 2। सो यहाँ पे तो ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मीन्स इट इज़ नॉट अ ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर के लिए हमें 2 नहीं चाहिए यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है। अगर हम 2 कॉमन लें तो हमारे पास क्या आएगा, 3q + 1। इफ़ यू पुट एनीथिंग इंस्टेड ऑफ q, हम पानी पुट करके देख लेते हैं। 2, 3 + 1 4। तो ये क्या आया हमारे पास, 8 आया। क्या ये ऑड इंटीजर बना? नो, इट इज इवन नंबर, सो इट इज इवन इंटीजर। तो ये जो है वो हमारी रॉन्ग होगी, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड। उसी तरह अगर आप इसमें भी 1 डालोगे, 2 × 3 6, हमारे पास इवन नंबर आ जाएगा लाइक दिस। इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है। तो 3q+, मतलब ये और ये तीनों तो हमारे हो गए गलत, बिकॉज ये तीनों ही जो हैं वो क्या है, वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मीन्स ये ऑड इंटीजर नहीं इवन इंटीजर है। एंड हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ओके, हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, अगर कोई चीज़ 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो उससे डिवाइड भी हो जाएगी। सो मतलब ये हमारे पास ऑड इंटीजर नहीं हुआ। इफ समथिंग इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज इवन नंबर, नॉट ऑड, but we want the answer a positive odd integer. So this thing 3 conditions is not satisfied for this question. तो अब जो रह गए हम उस टर्म्स को देखते हैं, लाइक 6q + 1 एंड 6q + 3। अब आप q की जगह पे कोई भी नंबर डाल दो, आपके पास ऑड इंटीजर ही आएगा। सो अगर आप 1 डालोगे तो 6 + 1 7। अगर आप 2 डालोगे, 6 × 2 12 + 1 13, दैट इज ऑड। सो ये तीनों कंडीशंस जो हैं, जब हम इसमें q की वैल्यू को डालेंगे, ये हमारे पास एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर देगी। तो आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं करना जैसे आपके टीचर्स आपको कराएंगे, या आपके पास बुक में एग्जाम्पल भी हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करोगे दैट इज़ बेस्ट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। गाइस, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आप पेपर में लिख के आओगे, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। जो पहले मैंने आपको बताया था वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लो एंड राइट इट लाइक दैट। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या बोल रहा है, an army of 616 members is to march behind an army band। कि एक आर्मी है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 616, जो कि मार्च करेंगे 32 मेंबर्स ऑफ आर्मी बैंड के पीछे परेड में। तो बताओ, 2 ग्रुप्स बनेंगे, सेम नंबर के कॉलम होंगे। बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से ही हमें पता लग रहा है कि हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सो दिस वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 616 and 32 members of the army will give the maximum number of columns in which they can march, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। For this we can use Euclid's algorithm to find the HCF. So हम अभी HCF निकालते हैं। किसका निकालेंगे, HCF of and this। इन दोनों में से जो बड़ा है वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा एंड जो छोटा है वो डिवाइड। तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास। तो मैंने आपको बताया था कैसे करना है। हमने 32 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा, मीन्स इसको फर्स्ट मिल जाएगा। सो 1 11 - 2 ओके 296। तो 8 से करके देख लेते हैं, 8 9 से करके देखना है, बिकॉज हमें पता है 3 9 27 होता है, 296 समथिंग आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा, अंदाजा लगा सकते हैं।
7, 9 2 का 8, so 1, 3 into 9 27, so 2 बस ऐसे आ गया। इसको अगर हम माइनस करेंगे 8 नाउ 8 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। हमें चाहिए कितना रिमाइंडर 0, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे। सो अब इसका डिविडेंड क्या होगा, इसका जो डिवाइजर था, हमें पता है ऐसे ही करते हैं ना। सो 32 एंड 32 पूरा जा रहा है, हमें पता है 4 के लिए जाता है। सो HCF क्या आया हमारे पास 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे इन विच दे कैन मार्च, सो आंसर इज 8। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बता रहे हैं इसमें, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either form 3m or 3m plus 1 for some integer m। मीन सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ that what do you mean by लेमा क्या होता है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको यूज करके हम कोई दूसरी स्टेटमेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल you can say that sun rises in the east and हमें पता है कि जो धरती है वो घूमती है। सो इससे हमने क्या बना लिया, that the sun sets in the west। ओके, एक स्टेटमेंट से हमने दूसरी स्टेटमेंट बना ली, that is called lemma। सो अब उसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके शो करो कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर में हमें पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर दोनों आते हैं, बट हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं अकॉर्डिंग। सो कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो, m जो है वो कोई भी इंटीजर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 दिख रहा है। सबसे पहले तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं जो हमने पहले बनाई थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारे पास, a इज इक्वल टू dq प्लस r। हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब अकॉर्डिंग टू दिस इसमें हमारे पास 3b की वैल्यू क्या है 3, मतलब हमें क्या चाहिए 3 क्या है हमारा, b क्या होता था हमारा डिवाइजर। मीन्स अभी हमें पता है कि डिवाइज़र जो है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा आता है, मीन्स रिमाइंडर जो है अभी डिवाइज़र से छोटा होगा। तो इस केस में कौन कौन से रिमाइंडर आ सकते हैं, इस केस में रिमाइंडर आ सकते हैं या तो 0 या तो 1 या तो 2। हमें पता है ना कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइज़र। सो अगर डिवाइज़र हमारे पास 3 है, सो रिमाइंडर आने के चांसेस किस के 0, 1 और 2 के। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हो सकता है। पहला हो सकता है हमारे पास 3q प्लस 1 0, देन 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। यही हो सकते हैं हमारे पास 3। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब अकॉर्डिंग टू दिस उसने क्या बोला, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो मतलब ये हो गया हमारे पास 3q। अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर ले लिया हमने 3q का स्क्वायर, सॉरी 3q का स्क्वायर ले लिया हमने, तो क्या आ गया हमारे पास 9q स्क्वायर एंड 3 कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या आ गया हमारे पास 3q स्क्वायर। ऐसे आ गया। अब q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसको हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी इंटीजर से, तो हमारे पास आंसर भी कोई इंटीजर ही आएगा। कोई यहाँ पे हमारे पास q कोई हमने रैशनल नंबर या डिवाइड में तो कोई फॉर्म ली नहीं है, हमने बेसिकली क्या लिया, पॉजिटिव इंटीजर। सो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। सो अभी हमने देखा अगर ये इंटीजर आएगा, सो इंटीजर क्या ले सकते हैं हम, m,
ये क्या हो गया हमारे पास 3। ओके, अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ओके, नाउ इसमें से 3 कॉमन लेंगे अगर हम, तो हमारे पास आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड प्लस 1। अब यहाँ पे भी वही बात होगी, अगर हम q को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और उसका स्क्वायर करके उसको ऐड करेंगे तो भी आंसर हमारे पास इंटीजर ही आएगा इसको करने पे। सो अगर ये इंटीजर है तो हमें पता है कि m है, सो 3m प्लस 1 आ गया। ओके, देन नेक्स्ट इसका भी करेंगे ऐसे ही सेम। सो क्या आएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12q प्लस 4। ओके, इसमें अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस। अब यहाँ पे देखो आप 3 इंटू 3 9q स्क्वायर हो गया, देन 12q एंड 3 इंटू 2 3 हो गया प्लस 1 4 हो जाएगा। ओके, समझ आया आपको? 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, बाहर मैंने 1 प्लस इसलिए लिखा बिकॉज 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 में से 3 कॉमन नहीं आ सकता था, इसलिए हमने इसको 3 प्लस 1 बनाया, देन 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आ गया और 4 प्लस 1 बाहर। सो इसी तरह ये भी हमारा एक इंटीजर है, तो ये यहाँ पे भी क्या है 3m प्लस 1। सो अभी हमने देखा कि q को हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें, हमारे पास क्या आएगा उसका, ये किसकी फॉर्म में आएगा 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 1। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है इसी की तरह, उसमें बस ये फॉर्म्स अलग हैं, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आप उसको ट्राई करना, अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं आपको बाद में वो क्वेश्चन कराऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।